ଆମେ ତ ସବୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ସାର୍, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହିଣ୍ଟ ଦେବୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଆଉ କ'ଣ ତାର ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତ ଆମର ବିପକ୍ଷରେ ଅଛି କିଛି, ନହେଲେ ସେଟାକୁ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା କରି ସେମାନେ କରିଦେବେ। ବିଶ୍ୱଜିତ ସାର୍। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସପ୍ରେମ ଜୟ ଭୀମ। ମୁଁ ପରମିଶନଟେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଗେ। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିବି, ଯେଉଁ ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଯେତିକି ସେତିକି ରେକର୍ଡ଼ କରିବି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ପରମିଶନ ନେଉଛି ଯେ ଯାହା ଆଜି ମୁଁ ମାନେ ଏବେ କହିବି କେସ୍ଟାକୁ, ସେଟାକୁ ମୁଁ ମୋର ଏଥିରେ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଛି। ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ବି ଯଦି କିଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଟିକେ। ତ ଆମକୁ ବାବା ସାହେବ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋଟୋ ଥିଲା, ତା ପ୍ରଥମେ ଏଜୁକେଟ୍, ତାପରେ ଏଜିଟେଟ୍, ତାପରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍। ଏଜୁକେଟ୍ କ'ଣ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଜିନିଷଟା, ତାପରେ ଏଜିଟେଟ୍। ଏଜିଟେଟ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା। এই ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦରକାର, ସେତେବେଳକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେବା। ତେଣୁକରି ମୁଁ କେସ୍ଟା ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛି ସାର୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ এই ଜଜମେଣ୍ଟର ମୁଁ ପାରା ସହିତ ମେନସନ୍ କରିବି, ଆଉ ରେକର୍ଡ଼ ବି ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ମୋର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଠିକ୍ ରହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକାଇକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ରେଜ୍ କରୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଜଜମେଣ୍ଟଟାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ଫଲ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ସେଠୁ ଧରିପାରିବେ। ତ ଆମର ଏଥିରେ 64ଟା କେସ୍, 64 cases has been combinedly heard by the honorable court and final verdict has been uploaded today in morning. ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାର କେତେଟା ଜିନିଷକୁ ମୁଁ କହିବି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜଣେ ମେମ୍ବର ସାର୍ ବି ଆମର କହିଲେ ଯେ ଆମର ଉପସ୍ଥାପନରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା କି, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜଣେଇବି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସବୁ ମେମ୍ବର ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମେ କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ, କେଉଁଠି ଫଲ୍ଟ ରହିଛି, ଆଉ ଜଜମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ନେଗେଟିଭ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସତରେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା, ଆମେ କ'ଣ କହିଥିଲୁ, ସରକାର କ'ଣ କହିଥିଲେ, ତିନିଟା ଜିନିଷ, ଅପୋଜିଟ୍ ପିଟିସନର୍ସ, ରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପିଟିସନରଙ୍କର ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ନେଉଛି, ପାରା ନମ୍ବର 3.4। ପାରା ନମ୍ବର 3.4ରେ ପିଟିସନରମାନଙ୍କ ଓକିଲ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ଟାଲି କରିବେ, ବିକଜ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଏଟାକୁ ଆପଣ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଆପଣ ସେଟାକୁ ନେଇକିନା ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଜିନିଷ କ୍ଲାରିଫାଏ ହେଇଯିବ। ତ ପାରା 3.4ରେ ସେ କହିଲେ, with insertion of rule 3A there is no justification to issue imposed clarification। ଏଇଟା ଜଜମେଣ୍ଟରେ ବି ଅଛି, ପାରା 9ରେ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜିଏପିଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ 3A ଯେଉଁଟା ଇନସର୍ଟ ହେଲା, କ୍ରାଇଟେରିଆ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ 1992କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଗଲା। ସେଠି ବି ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି, କାହିଁକି ୟୁ ସୁଡ୍ ନୋ SC/ST ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କୁ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ। କାଉନସିଲର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ 30/6/22 STC ସର୍କୁଲାର ପ୍ରଥମେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ସେଇଟା କହୁଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ବ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ସିନିୟର ବ୍ୟାଚ୍କୁ ସୁପରସିଡ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯଦି ମାଲକାନଗିରିର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଥିବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ, ମାଲକାନଗିରିରେ 1994ଟି ଜନ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି, ହେଲା କି। ଯଦି କେହି ବି ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଁ ମୋତେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି ମେସେଜ୍ କରିଦେଲେ ବି ମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରିଦେବି। ମାଲକାନଗିରିରେ ଜଣେ ଟିଚର୍ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ 1994 ମସିହାରେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ପଢ଼ୁଥିଲା ସେ 2011 ମସିହାରେ ଜଏନ୍ କଲା ସେମ୍ ସ୍କୁଲରେ। 17 ମସିହାରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଲା, ଟିଚର୍ ପାଇଲେନି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଲେ। 94 ଗୋଟେ ଜଣେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲା, 2017ରେ ଜଣେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲା 11ରେ, ଆଫ୍ଟର 17 ଇୟର୍ ହେଲା। ଏଇଟା କାହିଁକି କହିଲି,
बिकज जोटा मेन केस थिला 76-74 ऑफ 2025 हिरणमयी नायक वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। सेठी जने हमर एससी एसटी भाई थिले गजेंद्र बेहेरा, सी जॉइन करथिले 1999 रे। आ हिरणमयी मैडम जे जॉइन करचंती से 2007 कि 2012 ए दुटा भितर गोटे, कहीं से पिटिशनर रे मु मन पड़ुनी 3 जन थिले 2007-8 मसीह आउ 2 जन थिले 2012 मसीह। हिरणमयी मैडम बोधे 2007 मसीह जॉइन करथिले। सेतलको से जॉइन कले आज आपणकर कॉन्ट्रैक्चुअल हेकिना, तो से माने रेगुलर हेले 2013 रे, 13 से 14 रे। सेते बेलू आमर गजेंद्र सार से प्रमोशन पाइकिना 13 मसीह असिस्टेंट इंजीनियर हो गलानी। सेमानकर रेगुलर जो मैंने 12 होते से 18 मसीह है। 1999 कौटी 2018 कौटी, तथापि से कौन कले चैलेंज कले केस टाको। जजमेंट रे ए सब जिनस विषय किछि लेखा जाई नाही। तो एबे एटा हला बेसिक थिला, एटा काहे कि हिरणमयी बोली एई बळे बहुत गुडे केसेस हेतला, बट एटा हला मेन केस, तेन करू मेन केस रो मु एटा देली। एंड वास्ट डिपार्टमेंट केस टा जोटा मैं माने काउंसिल पूरा ये करिथिला, सेतिरे जण को छाड़ देले बाकी समस्त एससीबीसी कैटेगरी हैला। तो एटा हला मेन कंटेंशन। मु एबे जाउची एया विषय तो आपण जजमेंट रे पाइबेनी, किंतु एतिके आपण जानि थांतु मेन केस रे गजेंद्र बेहेरांकर प्रमोशन को चैलेंज करिछि 2007 मसीह जॉइन करथिबा गोटे जूनियर इंजीनियर। तो पारा 3.4 रे तांको वकील कहिले जे जदि क्राइटेरिया प्रमोशन अमेंडमेंट 3A रे क्लियर प्रोविजन अछि, ए जस्टिफिकेशन रो किछि आवश्यकता नथिला। पारा 3.5 और 3.6 states that Boyle Abbe 2000 rule was framed in exercise of the power conferred under Article 309 as per clarification issued without prior permission of governor and hence not sustainable in the eye of law। एठी मु इम्पोर्टेंट पॉइंट आपण को पॉइंट को नोटिस को नौची। इन द थ्रू आउट जजमेंट everyone who are present in today's VC kindly go and observe जे कोठी लेखा हेइनी ए जो एससी रो क्लारिफिकेशन टा हैला जीए डिपार्टमेंट रो क्लारिफिकेशन रो गोटे जीए डिपार्टमेंट रो क्राइटेरिया प्रमोशन अमेंडमेंट 2022 रूल रो क्लारिफिकेशन बोली जजमेंट रो को पार्ट रे कथा केही भी कही नाहंती। जीएपीजी डिपार्टमेंट तार इशू कला, एसएसटी डिपार्टमेंट स्टेट रो रूल प्रेजेंट लॉ ऑफ प्रेजेंट पोजीशन ऑफ लॉ जो आपनकर 10/6/5/24 जो चिठीटा इशू होइतला सेतरे 4टा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थिला आउ स्टैट्यूटरी रूल 3A थिला। बेसिंग अपॉन दिस 5 तो हमर लॉ डिपार्टमेंट एडवाइस कला एसटीसी डिपार्टमेंट को जे जे भी रिजर्वेशन नेकिन आछथि से माने जदी लास्ट ईयर कैंडिडेट ऊपर सीनियरिटी हो बा मेरिट हो जदि रहिले ताले से माने यूआर आकार प्रमोशन पाइबे। जो 4टा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट साइड करा हेची सेठी गोटे हला प्रथमे इंदिरा साहनी, आरके सबरवाल, तापरे आपणकर अखिल भारतीय शशि संघ आउ लास्ट को हला जनरल सिंह रो पारा 17 और 18 दुटा जगह डिफर करे, तेणु करी ताकू साइड करथिले। एंड लास्ट को 3A तो सी कोठी ना एससी एसटी तार क्लारिफिकेशन लिखी जे एटा जीएपीजी रो क्लारिफिकेशन बोली। एससी एसटी तार कोनोसी लेटर रे लिखिनी जो जो क्लारिफिकेशन मु इशू करूची सेटा हला जीएपीजी रो ओसीएस क्राइटेरिया अमेंडमेंट 2022 रो क्लारिफिकेशन फास्ट ना आपणकर जो ऑर्डर आज बाहरची सेथिरे ना पिटिशनर कहिची ना आपणकर आमर कोनोसी वकील कहिचोती ना गवर्नमेंट कहिची जे एटा हला क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन अमेंडमेंट 2022 रो क्लारिफिकेशन। तो कहीं एटा मु कहली बिकॉज सेमानकर 3-4टी पॉइंट नैचन से माने गोटे हला मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेल को इशू होइतिला,
सेकेंड होता सेकेंडटा है गवर्नर साइन कराई ना उसको अप्रूवाल नि जाए नहीं ऑनरेबल गवर्नर। तृतीय जिनस है यहाँ जीएपीजी रो जो क्लारिफिकेशन जीएपीजी रो रूलटार क्लारिफिकेशन एसटीएससी दे पारिबो ना कहीं से साइड कर पारा 6 ऑफ द जीएपीजी डिपार्टमेंट जो थे से कही जे जीएपीजी डिपार्टमेंट ही जदि किसी एनोमाली बा आसिला डाउट आसिला ताहले जीएपीजी ही आपको क्लारिफाई करिवो। तो से रूलटा को से साइड करछंती जे एई रूलटा को अमेंडमेंट करा जाय नहीं आउ एसटीएससी बाहर कर देइछे। चतुर्थ पॉइंट है क्वांटिफाइबल डाटा जोटा कि आपणकर जर्नल सिंह और नागराज। तो प्रथम पारा 3.4 मु कहली जे से माने जणैले जे जिते बड़े 3A रे क्लियर गाइडलाइन अच्छी ए क्लारिफिकेशन किसी आवश्यकता ना जजमेंट इज फुल ऑफ कंफ्यूजन कहार कहा सहित तालमेल ना आप निजे भी देखिए ये प्रथम जिनस 3.4 जोटा गला 3.5 और 3.6 रे से कहले जे एटा आर्टिकल 309 रे 1992 रूल और 2022 होती किंतु जो क्लारिफिकेशन इश्यू करछि आपनकर एससीएसटी सेटा गवर्नर परमिशन निया जाय नाही तेणुक सेटा नॉट सस्टेनेबल इन द आई ऑफ लॉ। पारा 3.6 रे कहला क्लारिफिकेशन आर कंट्रारी टू द प्रोविजन्स अंडर आर्टिकल 154 और 162 154 और 162 गवर्नर को एम्पावर करुछि जे एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन इश्यू करिवार तेणुक से कहले जेहेतु गवर्नर अप्रूवाल निया हैनी तेणुक एटा को आमे एटा हला अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पारा 3.7 कहले लॉ डिपार्टमेंट वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू इश्यू क्लारिफिकेशन एटी लॉ डिपार्टमेंट कहा को इश्यू करनी क्लारिफिकेशन लॉ डिपार्टमेंट रो काम हैला गवर्नमेंट को एडवाइस करबा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट माने हो बा कलेक्टर होंतु बा डायरेक्टरेट हो जदि किसी क्लारिफिकेशन से माने शॉर्ट करंती प्रेजेंट पोजिशन ऑफ लॉ उपरे लॉ तांको प्रेजेंट पोजिशन ऑफ लॉ को साइड करिकना तांको क्लारिफाई करे। तो ये लॉ डिपार्टमेंट वाज नॉट पारा 3.7 क्लारिफिकेशन आर कंट्रारी टू द प्रोविजन्स अंडर नहीं लॉ डिपार्टमेंट वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू इश्यू क्लारिफिकेशन आ इश्यूड ड्यूरिंग एमसीसी एटा पारा 3.7 रो जिस्टा। पारा 3.8 रे कहला जीएपीजी डिपार्टमेंट इज ओनली कॉम्पिटेंट टू इश्यू क्लारिफिकेशन एज पर रूल 6 ऑफ 1992 रूल 6 तो मु कहि देले आपन को जे जदि किछि एनोमाली बा माने डाउट आसिला ताले जीएपीजी ही ओनली डिपार्टमेंट हु कैन इश्यू क्लारिफिकेशन। पारा 3.9 रे से माने देखंतु पारा 3.4 रे से माने कहले जे जते बेले 3A क्लियरली कहूची तो आउ फर्दर ये क्लारिफिकेशन आवश्यकता नहीं किंतु पारा 3.9 रे से माने कहले जे माने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रिजर्वेशन अवेल करि नाहंती से माने यूआर पदोन्नति पाइबे किंतु क्लारिफिकेशन इश्यूड एसटीसी डिपार्टमेंट कहूची जे रिजर्वेशन अवेल करथिबा एसएसटी एम्प्लॉय मध्ये यूआर पदोन्नति पाइ परिबे तेनु करी इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी तेनु करी एटा सस्टेनेबल नुह एटी पारा 3.4 और पारा 3.9 इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग टू ईच अदर। पारा 3.10 रे से माने आरके सबरो 2, 4, 8, 9 पारा को रेफर करचंती। पारा 3.11 रे जनरल सिंह रो पारा 45 और 47 को रेफर करचंती जोटा कि से कहूची क्वांटिफाइबल डाटा कैडर बेस्ड। तापरे पारा 3.12 प्रभाकर मलिक केस साइड करचंती जोथिरे से कहिचंती जे प्रभाकर मलिक केस जोटा सुप्रीम कोर्ट जाइथिला से स्टेट हेटी मानी जे आमे कौन सी क्वांटिफाइबल डाटा कलेक्ट करी नाहू तेणुक से कहले जे प्रभाकर मलिक रे सुप्रीम कोर्ट रे कमेंट मानी जाइकिना जे आमे कौन सी क्वांटिफाइबल डाटा कलेक्ट करना तेणुक एबे माने जोटा बाहर करछन रिजर्वेशन प्रमोशन उपरे से सब जिनस हला नॉट एज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन तेणुक एटा को क्वाश करबा दरकार। सेम जिनस से माने मध्य कहले पारा 3.13 रे जनरल सिंह को केस को साइड करिकिना एति कि तांकर सबमिशन थिला। तापरे आमर वकील कौन कहिथिले अशोक महादी सर आमर परिचालना करथिले आमर
HNDUT ଆଉ ୱାଟର ରିସୋର୍ସର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କ କେସ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ପାରା 4 Schedule 1 of Schedule 1 serial number XIX of the rules of business को ସେ କହିଥିଲେ ଯେ STC department is empowered to frame rules for SCST employees ଯାହା ବଳରେ ହିଁ SCST clarification ବାହାର କରିଛି। ପାରା 4.1 ରେ ସେ କହିଲେ 3A clearly speaks SCST employee can be considered and adjusted against your post। ता माने एटी से कहि नांती जे एटा हला क्लारिफिकेशन टू माने जो क्लारिफिकेशनटा बाहर छला 3A रो क्लारिफिकेशन एटा से कहि नांती से कहउछन जो 3A माने बाहरिची सेथिरे मध्ये एई जिंस लेखा हेइची। पारा 4.2 रे से कहले बेसिंग ऑन प्रमोशन ऑफ जो प्रोविजन ऑफ 3A लॉ डिपार्टमेंट सबमिटेड हिज व्यूज डेटेड 27/2/2024 3A स्टैट्यूटरी रूल जेहेतु गवर्नमेंट स्टेट रो अछि ताकू बेस करके ना लॉ डिपार्टमेंट मु कहिदेले आपन को चारटा सुप्रीम कोर्ट और 3A को साइड करना सुप्रीम जो लॉ डिपार्टमेंट 27/2/2024 रे एडवाइस कला जे सीनियरिटी मेरिट रे जे ऊपर अछि से यूआर रे पाइबो। से जर्नल सिंह रो पारा 18 को मध्ये स्पेसिफाई कले एटा बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि हमर सेक्रेटरी जनरल सर टिके भूल कहिले मु एटा को एठी पुणी आउ थरे क्लैरिफाई करूची। हमर अशोक महांती सर माने जजमेंट लेखा है आज्ञा पारा 4.2 मु जहा कहूची बहुत पारा नंबर कहूची तणकर आपण माने ताको गुरुत्व सहित देखिबा और निजे टाली करिवे। 4.2 रे हमर एडवोकेट कहिले जे जर्नल सिंह अनुजाई स्टेट हैज कलेक्टेड द रिक्वायर्ड क्वांटिफाइबल डाटा शोइंग लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स इन द प्रमोशनल पोस्ट एंड दुर्भाग्यर विषय जिते बड़े जड़े एडवोकेट को मेंशन करछन इट इज आल्सो प्लेस्ड इन द जजमेंट जे स्टेट कलेक्ट करिछि एंड तार डॉक्यूमेंट हमें देइछु but same has not been cancelled or any rejected by the honorable court in his judgment। very important एटा को आउ थरे कहली जो क्वांटिफाइबल डाटा को बेस करके एटा कहा आइछि आम तरफ एडवोकेट जे लड़ुतिले सी पारा 4.2 रे मेंशन करिसंती जे इन टर्म्स ऑफ जर्नलिज्म आल्सो कंडा इन टर्म्स ऑफ जर्नलिज्म स्टेट हैज कलेक्टेड द रिक्वायर्ड क्वांटिफाइबल डाटा showing lack of representation of reserve category candidates in the promotional post but akku contradict कहीं करले नहीं जजमेंट करा जाई नहीं किंतु सही क्वांटिफाइबल डाटा को रखी कि ना पास करा गला। पारा 4.3 रे कहा गला देयर इज नो बार टू इशू क्लैरिफिकेशन ड्यूरिंग एमसीसी ए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अपन फाइनल जजमेंट पारा 9 पर अपन पाइबे नहीं इट इज ड्यू टू द आवर माने इफोर दैट आमे सेटा को मध्य कहितु जे आमे भी कहितु गवर्नमेंट भी कहितला जे एमसीसी बेल को मध्य आको बाहर करा जाई परिबो। पारा 4.4 रे ललित नायक रो पारा 12 13 पारा 4.5 रे लिटू बेहरा केस को साइड करा गला जे ऑलरेडी एसएसटी एम्प्लॉइज जो माने सीनियर अछंती तांको तमे डिप्राइव करि परिबोनी यू आर अगेंस्ट दबो बोली जोटा हमरो दीटा कोऑर्डिनेट बेंच कहिसंती सेटा से कहले। तापर हमर छाटोई सर को कथा अम्य कुमार छाटोई जे कि हमको ललित कुमार नायक केस जोटा हमको से माने जोटा हम फास्ट जजमेंट पाइथलु अंडर हिज माने तांकर ये रे तो सी तो माने अपॉइंट हेतिले आउ जने सीनियर एडवोकेट पीके सिन्हा सर को अपॉइंट करते तेनु करी पीके सिन्हा ना रे आपण पाइबे जोटा कि छाटोई सर को माध्यम रे अपॉइंट करा जेतिला। पारा 5 रे रूल 3A स्टेज द सेम सो नथिंग इलीगलिटी डन मु पुणी आउ थरे कहूछ आपण को जेटा बहुत इंपोर्टेंट जिंस जोटा जोटा कि जजमेंट काटिची जे जीएपीजी रो सर्कुलर रो क्लैरिफिकेशन एसटीसी दे परिबो नाही किंतु दुर्भाग्यर विषय इन एनी ऑफ द पेजेस ऑफ द जजमेंट यू गो थ्रू इट हैज नॉट इवन इन द क्लैरिफिकेशन भी कही नाही जे एटा हला मोर से क्राइटेरिया प्रमोशन अमेंडमेंट रो एटा हला क्लैरिफिकेशन बोली तो से एठी कहले जे द सेम थिंग हैज आल्सो स्टेटेड इन द रूल 3A तेन करी नथिंग इलीगलिटी डन। अब एटा ही हम पॉइंट थिला इलेक्शन हमर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जतले से करथिले
କହିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ନୂଆ ରୁଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟରୀ ରୁଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ବେସ୍ କରିନା କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ 3A ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି ସେୟାର କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବା ଅଦର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସେୟାର ହେଇଛି। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି 3A ସାଇଡ୍ କରିନା ଲଳିତ କୁମାର ନାୟକ ଆଣ୍ଡ ଲିଟୁ ବେହେରା କେସ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସିନିୟର SST ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ରୁଲ୍ 3A ଷ୍ଟେଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତାକୁ ଆମେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଏଟ୍ କରିଥିଲୁ ଲଳିତ ନାୟକ କେସ୍ ଆଉ ଲିଟୁ ବେହେରା କେସ୍ରେ। ପାରା 5.1 ରେ ସେ କହିଲେ ଆର୍ଟିକଲ 16(4)A ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ଟୁ ମେକ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଫର୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଇନ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ୱିଥ୍ କନସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲ୍ ସିନିୟରିଟି। ତେଣୁକରି କିଛି ବି ଭୁଲ ହେଇନାହିଁ। ପାରା 5.3ରେ ବିହାରୀଲାଲ ରାଡ୍ଡାକୁ ସାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କୁହାଯାଇଛି ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ସେପାରେଟ୍ କାଟାଗୋରୀ କଲ୍ଡ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ। ପାରା 5.4 RK ସବରୱାଲ ପାରା 4, ପାରା 5.5 ବିରପାଲ ସିଂ ଚୌହାନ, ପାରା 5.6 ଜର୍ନେଲ ସିଂ, ପାରା 5.7 ରାଜେଶ କୁମାର ଦରିଆ, ପାରା 5.8 ଅଜିତ ସିଂ 2 ର ପାରା 22, 27 ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ଏଇ ଯେତିକି ମୁଁ ଜିନିଷ କହିଲି ଦୁଇଟା ଆମର ଆଡଭୋକେଟ୍ଙ୍କର କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏନଗେଜ୍ କରୁଥିଲୁ 4 ଜଣଙ୍କର କଥା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିସ୍କୁ ନେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ରିଜର୍ଭ ରହିଲା 23/10/2025ରେ, ସେଠି କୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ law and counsel appearing for the parties are directed to file debt charge along with citation by 29/10/2025। 64ଟା କ୍ୟାଡରର କେସ୍ ଯାଇଛି। ସେଇ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ଆମେ 4ଟି ମାନେ ଜଣେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଫଲୋଅପ୍ କରୁଥିଲୁ, ସେ 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ଟୋଟାଲି କନସିଡରେସନକୁ ନିଆଗଲା ନାହିଁ, ଜଜମେଣ୍ଟରେ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଛାଟୋଇ ସାର୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଆମେ ସାଇଟ୍ କରିଥିଲୁ, ସେଠି 21 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ସାଇଟ୍ କରିଥିଲୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେଇଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ରେଲିଭାଣ୍ଟ, ଏଇଟା କାହିଁକି ରେଲିଭାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଜଜମେଣ୍ଟରେ ଟୋଟାଲି ମେନସନ୍ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲା ପାରା 6ରେ 3A has been inserted which is in consonant with the decision of Supreme Court in RK Sabharwal and ଲଳିତ କୁମାର ନାୟକ। 3A ଯେଉଁଟା ଆସିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ପ୍ରମୋସନରେ, ସେଟା ଆମର RK Sabharwal ଅନୁଯାୟୀ ହେଇଛି। ତାପରେ ପାରା 6.1ରେ GAPG ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ବଟ୍ ଟେକିଂ ଇଣ୍ଟୁ କନସିଡରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସାର୍କୁଲାର ଅଫ୍ STC ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡେଟେଡ୍ 23/7/1997 and advised by the GAPG department, the STC department has issued the clarification। এইটা ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ GAPG ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 12/10/22 ବାହାର କଲା, ତାପରେ ଅନ୍ ଲେଟର ଆକାରରେ 3ଟା କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 4/1/23, 20/2/23, 10/4/23 ହେଲା। ଏଇ 3ଟା ଯେଉଁ ଲେଟର ବାହାର କରିଥିଲା ଆମର GAPG ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଟୁ ଦ ରୁଲ୍ 3A କହିକିନା ସେ କହିଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆମର ମିନତୀ ସୋରେନ କେସ୍ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା କାଉନସିଲ୍ କତିକି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜିନିଷଟା ଆମେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାଡରଟାରେ ଇଏ କରିଥିଲୁ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଫାଇଲଟା, ତାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟା ଯେଉଁଠି ସେ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଆମର RTIରେ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ଗିଭେନ୍ ଫାଇଲ୍ଡ ବାଇ ଦ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ସାର୍। ତ ଯେଉଁ ଫାଇଲଟା ଏଇଟା ଯାଇଥିଲା, ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ GAPG ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଚାରିଲା। GAPG ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଠି କହିଲା ଯେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିଠି ଇସ୍ୟୁ କରିଛୁ। ସେକେଣ୍ଡ, ମିନକେତନ ସାର୍ କ'ଣ କିଛି ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ତ, ହାତ ରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ତ? ହଁ ସାର୍, ନିଶ୍ଚୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ସାର୍। ଟିକେ ଆମେ ଏଇଟା ଆପଣ ତ ବହୁତ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଡିଟେଲ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆମର ବୁଝିବାର ବି ବାହାରେ। ଆମର ଖାଲି ସାର୍ ଗୋଟେ କହିବେ ଟିକେ ଇଏ କରିକିରି ନାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ସାର୍ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ନାଇଁ ଜିନିଷ ସାର୍ ମୋର ସରି ଆସିଲାଣି। ଜଜମେଣ୍ଟଟା ଯେଉଁଟା ବାହାରିଛି ସେଟା ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର ସାର୍। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିବି କ'ଣ କରିବା ସାର୍। କାହିଁକି ଆପଣ ଲୁପହୋଲ୍ ନ ଜାଣିଲେ
मेंबर मैंने जदि न बुझे जे आमर आज जजमेंट जो बाहर आम कौन देइथिलु सेमाने कौन देइथिले तृतीय जिनस गवर्नमेंट कौन देइथिला आ जजमेंट से गुडा को केमिति भाबरे कंसीडरेशन को नेइछि सेटा जदि आम न कहिबा ताले मेंबर मानकर जो क्लारिफिकेशन टा दूर हबो नै मो पाखापाखि शेष हो गलानी मु खाली सारी दउछि सर तापरे हाँ जो आमर मिनती सोरेन केसटा मिनती सोरेन हाँ फाइनान्स जाइथिला जीएपीजी डिपार्टमेंट को जीएपीजी एडवाइस कला क्या फाइनान्स डिपार्टमेंट को जे आम एमती अलरेडी गोटे 10/23 चिठी इश्यू करछु किंतु एई संक्रांत रे एसटीसी डिपार्टमेंट ए 97-98 मसीह क्लारिफिकेशन देइछि तो गोटे यूनिफॉर्म पॉलिसी हेबा पाई आपण एसटीएस रो मध्य व्यू नियंतु ऑन द एडवाइस जोटा कि पारा 6.1 रे गवर्नमेंट एडवोकेट एटा ऑन रिकॉर्ड इन द जजमेंट 6.1 रे आमर माने गवर्नमेंट एडवोकेट कहिले ऑन द एडवाइस ऑफ द जीएपीजी डिपार्टमेंट एसटीसी डिपार्टमेंट हैज इश्यूड द क्लैरिफिकेशन ऑन द एडवाइस जीएपीजी डिपार्टमेंट रो कहिबा जुगु एसटीसी बाहर करछि एसटीसी पुणी निजे बाहर करनी एसटीसी मध्य ताको तर्जमा करिछि से फाइल जदि आपन को शेयर कर देबी आपन देखिबे हाउ ब्यूटीफुली द एसटीसी डिपार्टमेंट हैज एग्जामिन्ड द केस एंड रेफर द मैटर टू द लॉ डिपार्टमेंट एंड लॉ डिपार्टमेंट हैज इश्यूड द क्लैरिफिकेशन डेटेड 27/2/2024 तापरे आउ गोटे भी जिनस कुहाइछि जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट थिला पारा 6.2 रे गवर्नमेंट सबमिट करिछि जे जीएपीजी अर्लियर इश्यूड सिमिलर क्लैरिफिकेशन डेटेड 10/4/23 व्हिच हैज नेवर नॉट हैज बीन माने डिस्कस्ड इन द जजमेंट एट ऑल दो द गवर्नमेंट हु इज द मास्टर ऑफ दिस सर्कुलर एसटीसी डिपार्टमेंट द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इज सेइंग दैट जीएपीजी सेटा बाहर करछि जोटा कि मु बाहर करछि सेटा 3A अनुसार से बाहर करछि ताकू मध्य कंसीडरेशन को नेला नाही निया जाय नाही किंबा ताकू कटा भी जाई नाही जे एटा को एटा जोटा बाहर जेटा भूलु ठीक ही किछि कुहाई नाही तापर पारा 6.4 रे पारा 3 पारा 4 पारा 17 एंड जर्नल सिंह रो पारा 17 को से साइड करछंती तो दिस इज ऑल अबाउट द तापर जजमेंट आसिला एतिक हला आपण टोटल 98 पेज पर्यंत आपण पाइबे एई सब माने जिंस मु भाबुतिली 98 पेज पर कोर्ट विल एनालाइज एवरीबॉडीज कंटेंशन एटलीस्ट समस्त तो नेलेनी जेति जन एडवोकेट को सबमिशन को निया गला रेकॉर्ड को सेमान को द्वारा दिया जाइथिबा सबमिशन को एटलीस्ट एग्जामिन करा जाय किना ताको करा जाय पारथांता किंतु कोर्ट जोटा कि क्वांटिफाइबल डाटा को बेस कले जोटा कि हम सबमिट कले ताकू मध्य नेले नाही तो एठी एतिक जिनस हैला पर कोर्ट कोन कहिले पारा 9 जे एसटी जो जीएपीजी डिपार्टमेंट 3A क्लियरली स्टिपुलेटेड दैट प्रत्यक्ष नियुक्ति हो बा पदोन्नति हो मेरिट लिस्ट लास्ट यूआर कैंडिडेट उपरे जदि कौन सी एसटी कैंडिडेट रोचंती सेमानकु को तमे यूआर आकार कंसीडरेशन करिवो हैला तो द्वितीय पॉइंट रे से कहले 9.1 रे कहले एतिक स्पष्ट क्लैरिफिकेशन थिबा सत्वे जीएपीजी डिपार्टमेंट गोटे विवादीय क्लैरिफिकेशन बाहर कले बट व्हाई विवादीय आई डोंट नो द्वितीय जिनस ये आम एबे आसीबा सर कौन करवा और कनक्लूजन को एंड करुच्ची लास्ट को कोर्ट ऑर्डर कले बहुत इंपोर्टेंट सार भी टी मिस कले आम जनरल सेक्रेटरी सर जे हेटा रिव्यू करने कहुनी हेटा सब जी प्रमोशन 6/5/24 को बेस करना दि जाए सब तक क्वाश कर देइछन्ती सर इट हैज बीन क्वाश्ड सिंपली क्वाश्ड नॉट रिव्यू तेणुक एवं जी जन प्रमोशन पाई 6/5/24 को बेस करना समस्त प्रमोशन ऑर्डर कौन समय रिभर्ट होबार संभावना अच्छी बिकॉज द सेम हैज बीन क्वाश्ड बाय द ऑनरेबल हाईकोर्ट irrespective of categories. irrespective of the categories. Thank you, sir. तो एठी आमे एठी आउ गोटे जिनस हमर रहिला मु दि तीनटा जिनस कहिली एठी आमे केतरा जिनस मु फॉल्ट बाहर करली गोटे जिनस हैला ललित नायक केस लिटू बेरा केस को कहिसंती जे पर इनक्यूरियम करकिना पर इनक्यूरियम माने हैला कंसीडरेशन को निया जाई पारिबो नाही बा बाइंडिंग नुह काहे की बाइंडिंग नुह बिकॉज से माने जर्नल सिंह और नागराज को कंसीडर को नै जजमेंट बाहर नहीं
क्वाश कराइनि जोटा कुहा क्वाश कराई सेटा को क्वाश कराइनि सी खाली कहले जे एटा को आमे रेफरेंस हिसाब से नहीं पारिबु नाही जेहेतु सी एई जो जर्नल सिंह आमर नागराजर जजमेंट को विषय कौन जिनस लिखा जाए ना तो ये बहुत बड़ इंपोर्टाट जिनस है वेदर ललित कुमार नायक रे जज कौन जज को रोलटा है कौन जो प्लीडिंग आमर जो आमर रहा जो अपोजिट पार्टी आ पिटिशनर भितर जो आर्गुमेंट बेस करना जज कहे कौटा ठीक कौटा भूल सेठी नागराज विषय उठी ही ना सेठी उठी जे मु सीनियर अच्छी प्रमोशन पाइबी कि पाइबिनी बेसिंग अपन दैट आमर ललित नायक सार केस है लिटू बेहरा सार केस है ललित नायक हाँ ये मेरिट लिस्ट उपर रही माने है दीटा कंडीशन गोटे है आप दीटा कंडीशन दीटा केस आम साइड करूँ ललित नायक सार केस कौन है सी गोटे आलियर बैच गोटे तलर सब्सिक्वेंट बैच सुपरसीड कर लिटू बेहरा सार केस कौन है गोटे सिमिलर रिक्रुटमेंट रे यूआर फीमेल माने सार मान तले अच्छा व्हेराज जे कि मेरिट लिस्ट गोटे मेरिट लिस्ट एम तले अच्छा एम प्रमोशन दिगला से केवल एसएसटी बोली प्रमोशन दिगला ना तो या कोर्ट जस्टिफाई कर टेकिंग इनटू अकाउंट द 3A एंड ललित कुमार नायक तो विदाउट गोइंग टू द डिटेल से कौन कले पर इनक्वेरियम करदे किंतु सेठी रिजर्वेशन को चैलेंज कराई नथिला जोटा कि कौन से पिटिशन बदे चैलेंज करना किंतु पर इनक्वेरियम कर दिया गला एठी दुई तीन टा जिनस है जो 3A को कहते से जो 3A जो जिनसटा रहा से 3A टा ललित कुमार नायक सार लिटू बेहरा सार केस एग्जामिन होती आउ गोटे बड़ जिनस है रिजर्व कैटेगरी को ऑनरेबल कोर्ट भावी केवल SC/ST एटा है बहुत बड़ भूल जोटा कि रिजर्व कैटेगरी माने नुह केवल SC/ST डायरेक्ट रिक्रुटमेंट SCBC वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन एक्स सर्विसमैन समस्त रिजर्वेशन लेकिन अवेल करना आसुचंती सर्विस को एंड टेकिंग इनटू देयर जनरल सीनियरिटी एंड नेचुरल सीनियरिटी से माने यूआर प्रमोशन पाती किंतु एटी रिजर्व कैटेगरी को पूरा कन्फाइंड कर दिया गला केवल SC/ST मानक ताकू आउ किछि कहले नाही तो आउ जति कि आमर पॉइंट रेज करा गला ताकू मध्य काटिले नाही से लास्ट को ऑर्डर कले जे दी तीन टा कंडीशन पे गोटे है जी डिपार्टमेंट क्लारिफिकेशन तार माने जी डिपार्टमेंट रूल क्लारिफिकेशन STC दे परिबो नाही द्वितीय जिनस गवर्नर को अप्रूवल निया जाय नाही तृतीय जिनस आर्टिकल 16(4) ऑन जाय एंड ऑफ सब्सिक्वेंट क्लारिफिकेशन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन नागराज एंड जर्नल सिंह को फॉलो करा जाय नाही एतिकी कहि कि से कोन कले हेता को पास कले विदाउट गोइंग टू द मेरिट एठी आ गोटे जिनस मु कहबा को चाहूची STC जोटा बाहर करिछि हाँ जिते आर्गुमेंट होता सेते बेलू से प्रथम जो कही आम ये कहूँ जे यहाँ अलरेडी से ना स्टाच्यूटरी रूल को चैलेंज कर ना रिजर्वेशन एंड प्रमोशन जोटा आमर ORB एक्ट को चैलेंज कर तो से चैलेंज कर क्लारिफिकेशन को ये जो क्लारिफिकेशनटा है पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम जोटा कि स्टेट रे एनसुइंग अच्छी ता ऊपर प्रेजेंटली जर्नल सिंह रे देइथिबा क्लारिफिकेशन रो स्पष्टीकरण हाँ ये इंपोर्टेंट जिनस है जर्नल सिंह एपर्यंत कंप्लीट है ना तेणुक STC डिपार्टमेंट हैज इश्यूड ए क्लारिफिकेशन आफ्टर कंप्लीशन एनी अदर डेवलपमेंट और डायरेक्शन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंगली रूल्स मॉडिफाइड हम कि कौन हम तेणुक जेहेतु ये इंटरिम स्टेज अच्छी आप क्लारिफिकेशन भी देखिए से लिखाई इट इज सब जुडिस एंड एनी प्रमोशन सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ जर्नल सिंह तो सेठी से कौन करागला सेठी से कहगला कैडर बेस्ट आपनकर एडिक्वेसी माने बाहर करेंगे तो कैडर गुड़ाकर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है एडी तो सेठी STC कौन कला डिपार्टमेंट मानकू एम्पावर करदेला जे तमे याकू कौन कर क्वांटिफाइबल डाटा कैडर बेस्ट बाहर कर जोटा कि जर्नल सिंह कहते जदि जर्नल सिंह कहते कैडर बेस्ट बाहर करने प्रमोशन जो पोस्ट तुम प्रमोशन देव से कैडर एडिक्वेसी रिप्रेजेंटेशन बाहर कर तो ये से अनुसार सी कहले जर्नल सिंह जो एडिक्वेसी अच्छी तुम DPC फास्ट एग्जामिन कर तो वेदर DPC हैज एग्जामिन्ड और नॉट ताकू कहगला ना सब DPC को क्वाश कर दिया। द्वितीय जिनस ओन मेरिट उपर सुप्रीम कोर्ट जो प्रेजेंटली होल्डिंग द पोजिशन ऑफ लॉ को से कौन कर खाली क्लारिफाई कर सो इट इज नॉट एट ऑल न्यू पॉलिसी बिकॉज आमर पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम जो सार आप जनरल सेक्रेटरी सार कहे सेक्रेटरी जनरल सार कहले तार तो सार ऑर्डरटा होती
1124 ଡେଟେଡ୍ 15/3/2007 ସେଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ସେଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇନି ତାର କ୍ଲାରିଫିକେସନଟା ହେଲା ଜର୍ଣ୍ଣେଲ ସିଂ ସେଇଟା କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଲା। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜାଗାରେ ଲାକୁନା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଲା ଜଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ଆଜିର ଜଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ମୋର ଭ୍ୟୁ ରଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମିନକେତନ ସାର୍ ଆପଣ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ପଢ଼ିକିରି ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକିରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଗତି ପାଇଁ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କାହାର ଆମର ବି ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ପେଜକୁ ପଢ଼ିବାଟା, ଜାଣିବାଟା, ବୁଝିବାର ଇଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ବି ଆପଣ ସାର୍ ବହୁତ ଜଜମେଣ୍ଟ କପି ସର୍କୁଲାର ଆମକୁ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ବହୁତ ଅଛି ଏଠାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ସାର୍ ମଧୁସୂଦନ ସାର୍ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସଦାବେଳେ ଲାଗିକରି ଏଇଟା ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ବି ସେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ଆଜି ଯେତେ ଜଏନ୍ କରିଛୁ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ପୁରା 100 ବହୁତ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର ମାନେ ବାହାରେ ରହିଯାନ୍ତି, ସେମାନେ ପଶି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେ ଆମେ ମେମ୍ବର ଅଛୁ ସାର୍ ତ ବହୁତ କଥା କହିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଜାଣି ଶୁଣିକରି ଆମକୁ ଆମର ଅଧିକାର ଛଡ଼େଇ ନେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଛି। ପ୍ରମୋସନ କୌଣସି ଯାହା ହେଇଛି ତାକେ କ୍ୟାନସେଲ କରି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ସେଇ ସାର୍ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛୁ ଆମେ 4-5 ଦିନ ଧରି ମିଟିଂ ଯାହା କରୁଥିଲୁ ଆଗରୁ ସାର୍ 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 ଦିଆଯାଇପାରେ ନୁହଁ, ଦିଆ ସରିଛି ସାର୍। ଦିଆ ସରିଛି ସାର୍। ବେଲେ ଆମର ସବୁ ସାର୍ ଯାହା ଯଦି ଦେଇ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ସାର୍, ଆମର ଆଉ କାହାର ଏତେ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବା ଆମର ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସହିପାରିବା। ଆମର ଲୋକ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ହେବେ, ସେମାନେ ସହିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକକୁ ରିପୋର୍ଟ କଲେ ସହିପାରିବେନି। ସେଇଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଧରିକିରି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯେତେ ଜଏନ୍ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ମେମ୍ବରସିପ ନେଇଛୁ ତ ନିଜକେ ପଚାରିବା, ଯଦି ନେଇନାହାନ୍ତି ତାମାନେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେବା। 2 ନମ୍ବରରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ଏଇଟା କୌଣସି କେଡର ବା କୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବା କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ଲାଗି ଇଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। କିଛି ଖାଲି ଆପଣ ଯେ 1000 ଯାହା ଆମର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି ସେଇଟା ଯଦି ଦେବେ ବେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆରାମରେ କରିପାରିବା। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ ହେବା ସମସ୍ତେ ଦେବା କି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଖାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡୁଛୁ ଆଉ ତ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏବେ ଆମେ କେମିତି କରି ଆମେ ଫଣ୍ଡଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲେକ୍ସନ କରିବା ଆଉ ଲଢିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଆଉ କରିବା ବୋଲି